My name is Suruchi Rai. I am assistant professor at Rameshwam Institute of Technology and Management, Lucknow. Today I am going to deliver a lecture on a topic prescription and its part 1. In part 1 we will discuss about the layout of a prescription. Let's start. Before talking about the layout of prescription, we should know the definition of prescription. What is prescription? Basically, the prescription is a written communication between a physician, which is a doctor, you can say physician as well, physician or a pharmacist, to a patient for dispensing, compounding of a prescription. Basically, a prescription is a written communication, because in previous years the doctor cannot talk to the pharmacist by phone, but they talk with each other with the medium of prescription. Doctor prescribe a medicine on a prescription, they wrote the medicine, the dose, what to make emulsion, उसका emulsion बनेगा, tablet बनेगी, सिरप बनेगा, या फिर उसको एक पाउडर फॉर्म में पेशेंट को देना है. ये सारी ही चीज़ें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता था, लिखता था इन अ प्रिस्क्रिप्शन. जब प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक पेज है, एक जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो एक आपको एक पेज देता है जिसके ऊपर ही राइट योर डिसीज़, द मेडिसिन यू नीड टू टेक, जो भी आपसे हिस्ट्री डॉक्टर पूछता है, या ब्लड प्रेशर, या टेम्परेचर ऑफ द डे, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी होती हैं. एंड यू नीड टू गिव दैट पेपर, दैट पेज टू अ फार्मासिस्ट सो दैट ही कैन डिस्पेंस द मेडिसिन टू द पेशेंट. So this is a written communication. Definition of prescription is, this is a written communication between a physician and a doctor, where he give information to a pharmacist so that he can dispense and compound the medicine to the patient. Fine. The next is parts of prescription. What are the parts of prescription? Prescription, the first part is physician information. Now this physician information is the information about the doctor. I hope you all have seen the prescription, and you also seen that physician name. Physician means the doctor, the name of a doctor, the qualification of the doctor, the address of the doctor, as well as its email ID and phone number, which is present in the physician information. प्रिस्क्रिप्शन जो एक पर्चा जो आपको डॉक्टर देता है, उसके ऊपर एक फिजिशियन इंफॉर्मेशन का ब्लॉक होता है. सबसे पहले at just top of the paper, top of the prescription, there is a physician information जिसके ऊपर डॉक्टर का नाम लिखा होगा, its qualification, email ID if you wanted to contact with the email से अगर आप उससे contact करना चाहते हैं, कोई query पूछना चाहते हैं, as well as the phone number of the doctor is available in the physician section of the prescription. So this is in this section the whole information about the doctor is available. The next is patient information. तो उसके बाद जो सेक्शन आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, उसके ऊपर पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है. पेशेंट की इंफॉर्मेशन से अगर हम बात करें, द नेम ऑफ द पेशेंट, जो भी पेशेंट है उसका नाम होगा, ही इज़ मेल और फीमेल, उसमें मेल और फीमेल मतलब सेक्स लिखा होगा, द एज ऑफ अ पेशेंट इज़ देयर इन द पेशेंट इंफॉर्मेशन ब्लॉक, एंड as well as the phone number, the contact number of the patient is also available in the पेशेंट इंफॉर्मेशन. तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम लेआउट की बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, तो प्रिस्क्रिप्शन के लेआउट के बिल्कुल टॉप पे होगा डॉक्टर का नाम. आप सबने देखा होगा, इट मे बी ऑन द राइट और लेफ्ट पे भी हो सकता है. समटाइम कुछ प्रिस्क्रिप्शंस में क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में भी होता है. The name, the information about the physician, the doctor is also available at the center. It may be on the right, it may be on the left. कहीं पे भी हो सकता है. After this, after the physician information, there is the information about the patient. Patient का नाम, age, its phone number, और its then patient information के बाद उसके अंदर होता है superscription. सुपरस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा, अभी आप जब मैं आपको लेआउट दिखाऊंगी तो आप उसको और इजीली समझ सकते हैं. जैसे कि ये आपका एक लेआउट है. अगर इस मॉडल की बात करें, हम दोनों को साइमल्टेनियस लेके चलते हैं.
चलिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से आप और अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं. Physician information, so you can see this is the physician information. I write the name of a doctor, Dr. K.S. Rawal. He is a MD pediatric, and the house number, you can write the house number, whatever the house number you wanted to write. So this is the layout. I've made the model prescription. So this is the pin code, mobile number and the email ID of the doctor, the physician information section. In case of patient information section, in patient information there is a name of a patient, name, the age, the male or female, the sex and the body weight of the patient is written in the patient information sector. So if patient information section के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, then this is the superscription I'm talking about. दिस इज सुपरस्क्रिप्शन. सुपरस्क्रिप्शन के अंदर RX लिखते हैं या RJ लिखते हैं, विच मीन द डॉक्टर्स प्रे फॉर द वेलनेस ऑफ द पेशेंट. सो RX लिखा जाएगा जब भी वो कुछ भी प्रिस्क्राइब करेगा. डॉक्टर आपने देखा भी होगा अपने प्रिस्क्रिप्शन पे, ही ऑलवेज राइट RX. RX को आप ऐसे भी लिखते हैं डॉक्टर्स. RX कैन बी रिटन एज लाइक दिस. इस तरह से भी RX को लिख सकते हैं. फाइन. सो RX मीन्स सुपरस्क्रिप्शन. कुछ भी लिखने से पहले, विच मीन्स मेडिकेशन लिखने से पहले, दवाई को लिखने से पहले डॉक्टर क्या करेगा, RX लिखेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सुपरस्क्रिप्शन. क्लियर. RX के बाद दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द ड्रग विच नीड्स टू बी डिस्पेंस्ड बाय अ फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट को क्या करना है, इन सारे ड्रग्स को मिक्स करना है. एंड ये सब किस में आएगा, इंस्क्रिप्शन. इस पूरे ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एज इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन नाम से ही समझ सकते हैं, इंस्क्रिप्शन का मतलब इनसाइड होगा. Inside this block you can the doctor writes the medicine, the name of medicine will be written in this in section. In this section they have written the यहाँ पे example I have written the example of sodium fluoride, quantity sufficient, need to add, and then mix it with the water, purified water, and then there in subscription doctor write the how to make, you need to make the powder. फार्मासिस्ट को पाउडर बनाना है या फिर उसका इमल्शन बनाना है या फिर सिरप बना के डिस्पेंस करना है. ये इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी इन द सब्सक्रिप्शन के अंदर. ही रोट कि आपको कितना mg ऑफ फ्लोराइड लेना है एंड उसका किस तरह से उसको मिक्स करना है. सो दिस इज द लेटेंट टर्म. फेट फिस्टुला इज द लेटेंट टर्म विच मीन्स यू नीड टू मिक्स द कॉन्टेंट सोडियम फ्लोराइड विद द वाटर एंड इस तरह से मिक्स करके यू नीड टू डिस्पेंस टू द पेशेंट. देन द सेक्शन कम्स ट्रांसक्रिप्शन. इन ट्रांसक्रिप्शन दिस इज द इंडिकेशन टू द पेशेंट. पेशेंट को इंडिकेशन लिखी है फार्मासिस्ट ने कि आपको इसको दिन में 2 बार लेना है, 3 बार लेना है. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स हाउ मेनी टाइम द पेशेंट शुड टेक दिस मेडिकेशन. कितनी बार उस मेडिकेशन को पेशेंट को लेना है, उसकी 2 ड्रॉप लेनी है. यू विल टेक अ 1 टेबल स्पून ऑफ द सिरप और यू विल टेक द डोज नीड टू बी टेकन, वट एवर द डोज इज यू नीड टू टेकन. द physician and pharmacist should write in the transcription section. So this is about the model of prescription. In this prescription, at the top of the prescription is the physician information, then patient information, then superscription. After superscription there is inscription. Inscription includes then subscription, finally transcription, and one more signatura. Signatura means the designation, the signature of the authorized physician who writes sign here. This is a signatura. यहाँ पे क्या करता है, डॉक्टर को अपने साइन करने होते हैं. जो फिजिशियन होता है he'll sign at the end of the prescription and he as well as यहाँ पे एक स्टैम्प भी लगाती है. he put the stamp in that signature part. यहाँ पे सिग्नेचर में डेजिग्नेशन हो सकता है उसका, या फिर डॉक्टर की जो एक स्टैम्प होती है उस पेपर को, उस प्रिस्क्रिप्शन को ऑथराइज करने के लिए उसके सेक्शन में आती है. इट कम्स अंडर दी सिग्नेचर पार्ट, उसे हम बोलेंगे सिग्नेचर. क्लियर. सो अगर हम बैक जाएँ यहाँ पे, सो इसके अंदर पार्ट में बात करते हैं सुपरस्क्रिप्शन. तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सुपरस्क्रिप्शन का मतलब क्या है. सुपरस्क्रिप्शन का मतलब है जो RX हमने वहाँ पे लिखा था. So always remember
ये RX डॉक्टर और फिजिशियन हमेशा लिखेगा जब भी आप कोई भी मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उससे पहले सुपरस्क्रिप्शन को लिखा जाता है. सो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, आपको डिफरेंस यहाँ पे जो बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं, दे गेट कन्फ्यूज बिटवीन दी सुपरस्क्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन. सुपरस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सुपरस्क्रिप्शन का मतलब है सबसे ऊपर लिखा जाएगा. फाइन. सुपरस्क्रिप्शन कैसे याद कर सकते हैं कि सबसे ऊपर लिखा जाएगा. सबसे ऊपर का मतलब है आफ्टर द पेशेंट इंफॉर्मेशन देयर इज RX. RX इसके अंदर आएगा, सुपरस्क्रिप्शन में आएगा. सो बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी मेडिकेशन, राइटिंग एनी मेडिकेशन बाय physician should always write a superscription RX at the top of the prescribed medicine. Fine. After superscription there is inscription. अब inscription के अंदर क्या होगा, मेडिसिन होगी. whatever the medicine, whatever the drug physician wants to give to the patient, he wrote that medication, the name of the medicine along with the dose. Remember, inscription includes name of the drug as well as the amount of a drug. आप सब ने देखा होगा कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन को देखेंगे, सो यू ऑलवेज राइट, आपको उसका 10 mg लेना है, यू विल टेक 1 टैबलेट. अब डॉक्टर क्या करते हैं, दे राइट 1 टैबलेट और 2 टैबलेट बिकॉज दे नो कि 1 टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल कंटेन हाउ मेनी mg ऑफ पैरासीटामोल इन इट. सो उनको ऑलरेडी पता है. बट प्रीवियसली डॉक्टर्स क्या करते थे, दे राइट दी अमाउंट mg, अमाउंट ऑफ ड्रग नीड टू बी टेकन. जब उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन पे. फाइन. सो इंस्क्रिप्शन के अंदर याद रखेंगे द नेम ऑफ अ ड्रग एंड अमाउंट ऑफ ड्रग नीड टू बी टेकन बाय अ पेशेंट. डॉक्टर फिजिशियन राइट दैट इन इंस्क्रिप्शन पार्ट. Fine. After it, subscription, talking about the subscription, so don't get confused between the superscription and subscription. In subscription, there is an information by a physician to the pharmacist that he need to make a powder. He should make powder of the following ingredient which is written in the inscription part. जिसका मतलब है कि इंस्क्रिप्शन के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स फिजिशियन ने लिखे हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको इमल्शन बनाना है. यू नीड टू मेक अ पाउडर बना के उसको डिस्पेंस करना है, या फिर आप उसको एक सिरप बना देंगे या फिर सिर्फ पाउडर दे देंगे. कोई भी उसकी फॉर्मुलेशन जो बनानी है, देयर आर डिफरेंट डोजेस फॉर्म जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, और उसमें आप डिफरेंट डोजेस फॉर्म कौन कौन सी बनानी है, ही राइट दैट इंफॉर्मेशन इन दी सब्सक्रिप्शन. इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मुलेशन विच मीन्स आपको उसका क्या, जो फार्मासिस्ट हैं उसको क्या बनाना है, उसका सिरप बनाना है, पाउडर बना के डिस्पेंस करना है. दैट इंफॉर्मेशन रिटन इन द सब्सक्रिप्शन पार्ट. And in superscription he write at the above of the ingredients के सबके ऊपर लिखा जाएगा, that is RX लिखा जाएगा, which come under the superscription. Fine. So I hope कि आपको समझ में आ गया है the difference between the superscription and the subscription. Fine. Then subscription के अंदर indication है by the physician to the pharmacist so that he can dispense the medication whatever the indication he written on the prescription. फाइन. सो आपको इस एग्जांपल अगर मैं दूँ सब्सक्रिप्शन का, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हम पैरासीटामोल ड्रग किसी एडल्ट उसको दे रहे हैं, एडल्ट को दे रहे हैं, इन दैट केस एडल्ट कैन टेक अ ओरल डोज ऑफ पैरासीटामोल. But in case of children cannot take a tablet, they do not take the tablet. So in that case you need to make a suspension. उस केस में हमें सस्पेंशन बनाना पड़ेगा पैरासीटामोल का, अगर हमें वो ड्रग पैरासीटामोल ड्रग हमें बच्चों को देनी है. सो इन दैट केस ये जो इंफॉर्मेशन होती है और ये जो डिसाइड किया जाता है कि अगर वो चाइल्ड है, चाइल्ड को बच्चों को डोज देनी है, तो बच्चे बहुत ईजिली टैबलेट्स को, कैप्सूल्स को स्वेलो नहीं कर सकते. इन दैट केस हमें फॉर्मुलेशन चेंज करनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द एज ग्रुप ऑफ द पेशेंट. So that comes under the subscription. So here whatever the physician write, he need to make the suspension, pharmacist needs to make the suspension or a powder. So ये information लिखी जाएगी subscription. Fine. Next is the transcription. Transcription part contains the direction for a patient.
ये डायरेक्शन लिखी जाएंगी बाय अ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट इस डायरेक्शन को लिखेगा टू द पेशेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, सब्सक्रिप्शन is information written by a physician to a pharmacist. In transcription, this is the information written by a pharmacist to patient. Fine. So ये difference याद रखेंगे, subscription कौन लिखता है and transcription कौन लिखता है. In case of transcription, ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे जैसे कि जो भी फॉर्मुलेशन यहाँ पे बनी है सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग, वो वेदर इट इज़ अ सस्पेंशन या फिर वो टैबलेट है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में लिखा जाएगा कि उसको पेशेंट को 2 टैबलेट लेनी है, 1 टैबलेट लेनी है, कितनी बार लेनी है, एंड फॉर हाउ मेनी डेज ही और शी नीड्स टू टेक दैट टैबलेट, ही नीड्स टू टेक दैट फॉर्मुलेशन. सो दैट इंडिकेशन इज रिटन इन द ट्रांसक्रिप्शन पार्ट. In transcription, for example, as I will already make you see that in that example I have written the 2 drops of the whatever the formulation they have made in that example. So 2 drop, 3 drop, you will take the tablet 3 times a day, 2 times a day. These indication is written in the transcription part. Fine. So after transcription there is renewable. Renewal means we अगर आप डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं तो उसमें क्या करेगा, फॉर सम टाइम डॉक्टर्स डज ही चेंज योर मेडिकेशन, आपकी मेडिकेशन चेंज कर देते हैं, या फिर व्हाट डॉक्टर डज दे इंक्रीज द डोज और डिक्रीज द डोज. सम टाइम क्या होगा, अगर आपके मेडिकेशन को बंद करना है एंड कोई न्यू मेडिकेशन आपको दी जाती है बाय फिजिशियन, बाय अ डॉक्टर, सो उस केस में रिन्यूएबल आता है, विच मीन्स उसके अंदर कुछ ड्रग्स ऐड होंगी एंड कुछ ड्रग उसमें से बंद कर दी जाएंगी. सम ऑफ द ड्रग डोज इंक्रीज, उस डोज को इंक्रीज कर दिया जाएगा और कम कर दिया जाएगा. ये सारी चीज़ें आपका रिन्यूएबल में आता है. द नेक्स्ट इज सिग्नेचर. सिग्नेचर जैसे मैंने आपको बताया एट द लास्ट टॉप, जो लास्ट आपका प्रिस्क्रिप्शन का जो लास्ट पार्ट होता है, वेदर वो राइट साइड हो या फिर लेफ़्ट साइड हो, वहाँ पे क्या करता है, डॉक्टर को सिग्नेचर होते हैं, डॉक्टर के सिग्नेचर हैं एज वेल एज वहाँ पे स्टैंप लगी हुई है. सो एज टू ऑथराइज दैट पेपर, उस पेपर को ऑथराइज करने के लिए वहाँ पे एक स्टैंप और सिग्नेचर इज़ वेरी कंपल्सरी. आपकी प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर की सिग्नेचर होना और उसका स्टैंप होना इज़ वेरी कंपल्सरी, तभी उसको एक ऑथराइज प्रिस्क्रिप्शन माना जाएगा. फाइन. एंड अदर कोई इंडिकेशन, कोई अदर डायरेक्शंस अगर फिजिशियन को देनी है या फिर फार्मासिस्ट को देनी है टू द पेशेंट, तो और या फिर अगर फिजिशियन को फार्मासिस्ट को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, सो वो अदर इन्फॉर्मेशन पार्ट में लिख सकते हैं, एज वेल एज पेशेंट को अगर उसको फार्मासिस्ट को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो भी उसके ऊपर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ और है, अदर इन्फॉर्मेशन में डॉक्टर समटाइम्स क्या करते हैं, दे राइट द बॉडी टेम्परेचर, body weight of the patient. They may also write the age as well as your sometimes some tests you need to do. Sometimes doctors write कि आपको x-ray करवाना है, you need to do the blood test, the name of the blood test they also written. The other information में सारी चीज़ें आती हैं. So prescription के अंदर आपसे डॉक्टर समटाइम हिस्ट्री भी पूछते हैं, तो वो हिस्ट्री भी एक लाइन में वो लिख देते हैं वहाँ पे कि आपको प्रीवियसली इस ड्रग से एलर्जी है या फिर आपको इस ड्रग से एलर्जी हो सकती है. सो दैट फार्मेसी शुड नॉट गिव एनी ड्रग जिसकी वजह से पेशेंट को ऑलरेडी एलर्जी है. वैसे तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फार्मासिस्ट टू कीप द हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट. जब भी आप फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, दिल टॉक विद यू एंड दे नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ योर डिसीज़, एनी हिस्ट्री. अगर आपको इससे पहले कोई भी डिसीज़ हो गई है एंड आपको उससे कौन मेडिकेशन से कौन सी एलर्जी है, सो यू ऑल्सो कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पेशेंट, ईच एंड एवरी पेशेंट विद हिम. फार्मासिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही शुड कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जिसको वी वुड मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं. बिफोर डिस्पेंसिंग ही शुड नो द इंफॉर्मेशन ऑफ द एंड हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट. सो इट कम्स अंडर द पेशेंट प्रोफाइल. सो पेशेंट प्रोफाइल हर एक फार्मासिस्ट को केमिस्ट पे स्टोर करनी होती है, अपने एक रजिस्टर में लिखना होता है कि कौन से मेडिकेशन उसने डिस्पेंस की है एंड उस पेशेंट को की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री क्या है, एज वेल एज कि उसको किसी ड्रग से एलर्जी है तो उससे भी ध्यान में रखते हुए मेडिसिन को डिस्पेंस एंड कंपाउंड करना है.
फाइन, दिस इज़ द मॉडल। ये मॉडल आपको बनाना होगा जब भी आप इसको बनाएंगे। अगर आपको सिलेबस में आता है, क्वेश्चन में आता है अबाउट द प्रोटोटाइप, तो आपको प्रोटोटाइप अगर वर्ड आता है, विच मीन्स प्रोटोटाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसका एक मॉडल आपको तैयार करना है। सो मॉडल के केस में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सेम यही नाम लिखेंगे डॉक्टर का, जैसे मैंने डॉक्टर के.एस. रावल लिखा है। यू कैन राइट योर नेम, आप अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर आप किसी और डॉक्टर का नाम भी लिख सकते हैं। सो आप इस लेआउट को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि आजकल यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लिखा है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं, बिकॉज अभी अगर आप प्रिस्क्रिप्शंस देखेंगे, मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा होता है। सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट। सो email ID, whatever you want, whatever the information you have seen in the other prescription, you can also add in this. This is the model I prepare. तो आप इसके अंदर चीज़ों को ऐड कर सकती हैं, एज वेल एज अगर आपको उस चीज़ को नहीं लिखना है तब नहीं भी लिख सकते हैं। बट एक मैंने आपको लेआउट बना के दिया है, और दिस इज इंफॉर्मेशन द हैव टू गिवन अबाउट द ड्रग। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको यही एग्जाम्पल ही लिखना है जब आप प्रोटोटाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को ड्रॉ कर रहे हैं। फाइन, सो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, विच मीन्स अगर आप यहाँ पे पैरासीटामोल लिखते हैं और उसके साथ अगर हम कैफ़ीन को, जैसे नॉर्मली कैफ़ीन और पैरासीटामोल को एक साथ अगर हम देते हैं, सो उस केस में आपको सब्सक्रिप्शन को भी चेंज करना है। डोंट फॉरगेट टू चेंज द सब्सक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एक सॉलिड डोज बना रहे हैं, सॉलिड आपने ड्रग लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, तब आप उसमें 2 ड्रॉप नहीं दे सकते, बिकॉज पाउडर को आप ड्रॉप्स में नहीं ले सकते हो। फाइन, यस, अगर कोई ऐसा पाउडर है जिसे अगर आपने देखा होगा ORS जो मार्केट में अवेलेबल है, उसकी अगर आप कभी डायरेक्शन देखेंगे तो उस डायरेक्शन के ऊपर लिखा होता है कि आपको उसको 1 ग्लास वाटर लेना है, उसके अंदर उसको मिक्स करना है एंड देन उसको आपको एडमिनिस्टर करना है। सो यू शुड राइट दिस। आप जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगर पाउडर को डिस्पेंस करना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ इंडिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर लिखी होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन को सिग्नेचर भी कहते हैं। क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि पेशेंट को जो भी मेडिकेशन है उसे 1 ग्लास ऑफ वाटर के साथ अगर मिक्स करना है, इफ़ इन केस इट्स पाउडर है तो उसे मिक्स करना है, मिक्स कितना अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करना है, ये सब मिक्सिंग और ये सारी जो इंडिकेशंस हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर लिखेंगे। और ये सारी चीज़ें लिखनी है बाय अ फार्मासिस्ट टू द पेशेंट। फार्मासिस्ट लिखेगा फॉर पेशेंट के लिए। Fine. So this indication is very important when a pharmacist is dispensing or compounding a drug to a patient. So indication plays a very important role. But nowadays what happen, अगर आप किसी भी फॉर्मुलेशन का एक लेबल देखेंगे तो लेबल में आप हमेशा देखेंगे देयर इज़ ऑलवेज अ इंडिकेशन, देयर इज़ ऑलवेज अ डायरेक्शन फॉर अ पेशेंट के लिए डायरेक्शन होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि अडल्ट डोज कितनी लेनी चाहिए, वट एवर द मेडिकेशन इज़। अडल्ट डोज के लिए या फिर लिखा होगा कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है उससे आप बात करके उसके अकॉर्डिंग जो डोज़ आपको बताई जाए आप उस डोज़ को लें। या फिर बहुत सारी ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं वेयर देव रिटन द अमाउंट नीड टू बी टेकन बाय अ एडल्ट इंडिविजुअल। फाइन, तो दिस दैट इंफॉर्मेशन कम्स अंडर द ट्रांसक्रिप्शन। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे इन केस एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, सो यू शुड ऑल्सो चेंज द सब्सक्रिप्शन एज वेल एज द ट्रांसक्रिप्शन। ये दोनों आपको चेंज करने हैं एंड आपको ये नहीं करना है कि आपने यहाँ पे पाउडर का एग्जाम्पल लिखा है एंड you are writing the 2 drops of the powder. फाइन, सो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इस लेआउट में और चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। मैंने इसमें इतनी चीज़ें ऐड नहीं की है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इवन यू कैन ऑल्सो ऐड द टेस्ट लाइक ब्लड टेस्ट। तो अदर इंफॉर्मेशन का ब्लॉग बना के आप यहाँ पे, आप लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर देखा भी होगा, एवरी प्रिस्क्रिप्शन के साइड में एक ब्लैंक साइड होती है जहाँ पे डॉक्टर राइट्स योर टेम्परेचर। They mostly they write the temperature or they also write the body weight, fine, and any medical history you have, previous medical history, तो वो यहाँ पे लिखते हैं। So उसको भी यहाँ पे इस ब्लॉक में लिख सकते हैं। As well as you can also write the test, name of a test. If there is a need for X-ray, you can write X-ray here, and you can name it other
अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन, आप इसको नाम देख सकते हैं अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन का। तो प्रोटोटाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और मॉडल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आप अपनी तरीके से भी बना सकते हैं। फाइन, सो दिस इज़ एक मॉडल मैंने आपको दे दिया है, आप इसके अंदर जो मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, बट यू शुड ऑलवेज लेबल दी ईच एंड एवरी कॉलम, like I've labeled the physician information, patient information, subscription, inscription, superscription, sorry, and then inscription, subscription, finally transcription, and also label here signature. सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे लिखना है, एज वेल एज स्टैम्प आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिग्नेचर एंड स्टैम्प आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट सिग्नेचर एंड स्टैम्प। सो इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट बेसिक जो मॉडल रहेगा प्रिस्क्रिप्शन का वो आप यही बनाएंगे। फाइन, सो आफ्टर दिस प्रीवियसली पहले क्या होता था, जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस थे उनको लेटन टर्म्स में लिखा जाता था। इन टर्म्स ऑफ लेटन द डॉक्टर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन इन लेटन लैंग्वेज में लिखते थे, एंड नाउ देन जो फार्मासिस्ट है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, एंड देन दे डिस्पेंस एंड कंपाउंडेड ड्रग। बट नाउ डेज दे राइट इन इंग्लिश, बट प्रीवियसली लेटन टर्म्स में लिखते थे। देयरफॉर मैंने आपके लिए टेबल बनाया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि लेटन टर्म्स में कैप्सूल को क्या कहते हैं, इमल्शन को कैसे लिखते हैं, तो ये एब्रीविएशन। बट नाउ डेज व्हाट फिजिशियंस डज, दे राइट दिस एब्रीविएशंस। ये एब्रीविएशंस आपने देखे होंगे, डेफिनेटली देखे होंगे, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डॉक्टर्स राइट कैप्सूल लाइक दिस, but previously capsule or these things are written in latent terms like this. So capsule को capsula लिखेंगे, fine. Emulsio, then emulsio means an emulsion, capsule this means a capsule, then gargles, this is the abbreviated form। अगर abbreviation में लिखेंगे तो abbreviation में gargles को इस तरह से लिखेंगे GARG dot, fine. Then if talking about the inhalation, inhalation will be written in the INHAL, एंड आपने सब ने देखा होगा कि इंजेक्शन को तो डेफिनेटली इस एब्रीविएशन में फिजिशियन ऑलवेज राइट इंजेक्शन लाइक दिस, दे नेवर राइट द फुल नेम ऑफ इंजेक्शन। सो इंजेक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, इस एब्रीविएशन। इफ यू टॉकिंग अबाउट अ पेंट, पेंट का मतलब है माउथ पेंट्स। माउथ पेंट्स क्या होते हैं, माउथ पेंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके डेफिनेशन भी पढ़ चुके होंगे। सो माउथ पेंट्स क्या होते हैं, एक ग्लिसरिन टाइप का, जली टाइप का आपका एक लिक्विड होता है जो आपको अगर माउथ अल्सर्स हो गए हैं उसमें अगर आप यूज़ करते हैं और डॉक्टर ने आपको उसके लिए प्रिस्क्राइब किया है पेंट को, तो उस पेंट को लिखा जाएगा PIGM एब्रीविएशन के साथ। इन केस ऑफ सुपोजिटरीज भी आप पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ सुपोजिटरीज द एब्रीविएशन इज SUPPOS dot, and the finally tablet is written as TAB dot, fine. So next is these abbreviation is for dosage form. For dosage form the abbreviation is for divide, it is DIV. Then another in English we say twice the day, twice the quantity means double the quantity, it is DUPLUM, diplom. So and to be mixed, this is an indication by physician to the pharmacist, to be taken, to be used, to be rubbed in. To be rubbed in is used for the ointments or cream, fine. This is all the latent terms along with the abbreviation and the English. So these are the references from where I have taken the content. This is all for today, thank you.